sick and fit certificates जो issue करते हैं. And this is important also, you have to know this because for yourself only, not only for yourself but also for the understaff जो भी रहेगा जब posting होगा division में, so you have to know little bit of nuances है इसमें उसका sick fit certificate कैसे होता है. Authority, of course, RHS officer who has a technical qualification become a medical officer, and we have a registration under MCI and delegated powers by the railways. So clientele जो है, that is one is the non-gazetted staff, other the gazetted staff, and RPF staff को थोड़ा सा अलग से किया है because sick fit certificate को जो है इसका थोड़ा सा अलग है than the non-gazetted other staff. Gazetted के लिए it is universal, एक ही नियम है, बट कौन सी सर्टिफिकेट है हमारे लगता है, कौन सी उनका लगता है, ये थोड़ा जानना था. So at one go I will talk about all these 8 certificates one by one, and उसका ही डिस्क्रिप्शन बाद में है, so I will just touch upon there. यहाँ पे ही मैंने शुरू करते हैं. Now it's very easy to remember in such a way कि सिर्फ एक कोई भी बंदा पहले सिक करते हैं तो सिक सर्टिफिकेट इशू होता है, and this is totally RMC, that is Railway Medical Certificate. It's not PMC, Private Medical Certificate नहीं है. This is Railway Medical Certificate given by an authorized medical officer, and nobody can challenge this. For gazetted officers, always try to get hold of a medical officer in the medical department whenever you fall ill. If you want sick leave, अपना छुट्टी लेके जाते हो तो अलग बात है, लेकिन reporting sick under sick leave is authenticated instead of staying back home and saying nothing or adjusting your own leave. So this particular leave is being commuted later on when you apply. हमारे लिए पहले क्या होता है, एक किसी को सिक देना है तो उसको कितने दिन का टेंटेटिव एक देते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द इलनेस, वैरायटी ऑफ द इलनेस, द डॉक्टर विल डिसाइड हाउ मेनी डेज टू पुट हिम अंडर सिक लिस्ट. एक बार सिक लिस्ट में हो गया, उसके बाद फर्दर पीरियड ऑफ सिक लिस्ट जरूरत नहीं है, देन स्ट्रेट अवे वी गिव देम फिट. अगर बीच में जरूरत है, सपोज 5 डेज का दिया है, उसके बाद एक्सटेंडेड टू भी और लगता है कि इसको और 2-3 दिन 4 दिन जरूरत है, then at a supplement to the पहला first sick certificate issued, we issue continuous sick certificate that is called as CSC, continuous sick certificate. CSC issue करते हैं, interim certificate supporting the previous one, and finally when he becomes fit तब जाके fit certificate दे देते हैं. तो sick हो गया, interim हो गया, then fit हो गया. अब ये हो गया जो भी हेडक्वार्टर तुम्हारा है वहां पे अगर किसी ने कर लिया sick, वहां ही fit ले लिया, no issue. Suppose an employee or an officer from other railway has come to this particular railway A from C or D और यहाँ पे रिपोर्ट सिक किया, तो सिमिलर पैटर्न में उनको भी स्टाफ को, एम्प्लॉय को, नॉन गेजेटेड हो या गेजेटेड हो, सिक देंगे. कंटिन्यूअस सिक सर्टिफिकेट जरूरत है तो देंगे. एंड वाइल एट द टाइम ऑफ फिटनेस, फिट सर्टिफिकेट के बदले में फिट के ऊपर हम काट के लिख देते हैं ट्रांसफर टू फिट टू ट्रेवल. दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर सर्टिफिकेट. That means now I am on being fit, I am allowing this particular person, employee, चाहे officer हो चाहे non-gazetted employee हो, to travel to his own railway and report there as a fit one. So जब वो transfer fit लेके जाते हैं, fit के ऊपर काट के हम जब transfer certificate देते हैं, जब लेके जाते हैं, he reports to his original headquarter doctor there, और वो वहां पे सिर्फ फिट का जो पन्ना है उस पे ऊपर फिट सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं. माई यहाँ का जो मैंने ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया उसको रख लेते हैं अपने पास. तो इसी हिसाब से जब पर्सन कम्स फ्रॉम अदर रेलवे तब ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाइल ऑन ट्रैवलिंग फिट टू ट्रैवल करके फिट के दौरान हम दे देते. बीमार है उस वक्त हम नहीं देते. नाउ कम्स चेंज ऑफ एयर सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट रिकमेंडिंग चेंज ऑफ एयर. दिस सर्टिफिकेट इज बीइंग अलाउड नाउ. इसको प्रीएम्बल में मैं पहले बता देता हूँ. व्हेनेवर अ पर्सन, चाहे गेजेटेड हो नॉन गेजेटेड हो, रिपोर्टेड सिक, अंडर सिक लिस्ट में ले लिया किसी भी जगह पे, अपने हेडक्वार्टर में हो या दूसरे रेलवे में जाके हो, until unless he is given transfer fit certificate or fit certificate, that particular person cannot leave that particular headquarter or place under sick leave जहां पे वो रिपोर्ट किया. Until unless the doctor permits him. अगर किया तो गुनाह किया, हमारा नजर में नहीं आया तो बच गया. इसी हिसाब से चलते हैं. Why? Because under sick leave even a GM cannot move out from the headquarters.
बट मोस्टली ये होता है कि नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय जो लो रंग पीपल है, दे अप्लाई फॉर देयर लीव, दे वांट लीव सम पीरियड ऑफ फेस्टिवल एंड देयर सुपरवाइजर डज नॉट परमिट देम, सो दे ट्राई टू सीक होल्ड ऑफ सिक लीव, ओपीडी सिक करके 2-3 दिन का छुट्टी लेके ही गोज आउट ऑफ स्टेशन एंड कम बैक्स. ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ समथिंग हैपेंस, रेलवे इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. इसीलिए सिक ऑफिसर्स डू नॉट बिहेव इन सच वे. सिक लेके वो बाहर जा नहीं सकते, ये रिमेंबर दिस. अगर जाना है तो मेडिकल ग्राउंड पे तुम जा सकते हो वाइल अंडर सिक लीव. वाइल अंडर तुम फिट लेके चले जाओ, नोबडी अपना छुट्टी लेके हु बॉदर्स. बट वाइल ऑन सिक लीव यू कैन नॉट लीव दैट पर्टिकुलर स्टेशन until unless doctor permits you, either by issuing you fit to travel or fit certificate, or while under sick leave producing change of air certificate, and that is only for recuperation and recovery from the disease. Chronic psychiatric problem या chronic lung problem, chronic asthmatic problem, very cancer cases, बहुत दिन से बीमार है, he wants some change to go to his hometown, तो उसके लिए हम दे सकते हैं. बट मिनिमम मोस्ट हम रेकमेंड करते हैं नॉट मोर देन मोस्टली 6 months, उतना भी नहीं देते. सो इन दैट केस ओनली केसेस ऑफ रिकवरी एंड रिक्यूपरेशन फ्रॉम द डिजीज while under sick leave, a person can be allowed to move out of that place where he has reported sick, and that is called as change of air or COA, change of air certificate. नेक्स्ट कम ड्यूटी सर्टिफिकेट. ड्यूटी सर्टिफिकेट मतलब ड्यूटी पे जाने के लिए एक सर्टिफिकेट. किसके लिए एप्लीकेबल है? नंबर 1 ओनली फॉर नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय. नंबर 2 इफ ही ब्रिंग्स अलोंग विथ हिम सिक एंड फिट फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल डॉक्टर. सो प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट यानी पीएमसी लेके अगर आते हैं नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय, नंबर 1 नॉन गेजेटेड, नंबर 2 पीएमसी लेके अगर आते हैं मोर देन 3 days एब्सेंस के बाद, मोर देन 3 days, तो 3 क्राइटेरिया है ड्यूटी सर्टिफिकेट. नंबर 1 मोर देन 3 days, नंबर 2 नॉन गेजेटेड होना पड़ेगा, एंड नंबर 3 पीएमसी लेके आ रहा है तो उसका सुपरवाइजर डिपार्टमेंट में he will write a covering letter and send to the doctor that he was on leave. हम देखेंगे उसका कौन सी कैटेगरी सेफ्टी है तो उसको आई टेस्ट करा लेंगे एक बार. दूसरा डिपार्टमेंट है तो बाकी कैटेगरी का एम्प्लॉय है, उसका नंबर ऑफ डेज और किस लिए बीमार था वो देख के फॉर्मल एक चेकअप करके उसको हम ओनली प्रोड्यूस ड्यूटी सर्टिफिकेट, एंड द पीरियड ऑफ एब्सेंस विल बी डेल्ट बाय हिज डिपार्टमेंट. अगर इफ इज अ क्रॉनिक एब्सेंटी ही मे नॉट बी अलाउड टू कम्यूट, उसको एब्सेंट मार देगा. लेकिन ऑथराइज्ड ड्यूटी में जाने के लिए बिकॉज ही हैज रिपोर्टेड सिक टू अ प्राइवेट डॉक्टर, हम ड्यूटी सर्टिफिकेट इशू करते हैं, बट नॉट लेस देन 3 days. 3 दिन के नीचे है, इट इज सेड दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. सुपरवाइजर कैन टेक हिम डायरेक्टली अगर कोई खास बीमार ना लगे तो. बट लेस देन 3 days वी डू नॉट प्रोड्यूस ड्यूटी सर्टिफिकेट. मोर देन 3 days तो पीएमसी लेके आया नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय. गेजेटेड के लिए ड्यूटी सर्टिफिकेट प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट इज नॉट परमिटेड. रिमेंबर दिस. फॉर अस वी कैन नॉट रिपोर्ट फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल डॉक्टर, एक्सेप्शन जहां पे इमरजेंसी में कोई साथ में नहीं था, कुछ भी नहीं था, डॉक्टर रेलवे का आउटलेट मैं घूमने गया था वहां पे डॉक्टर, तो मैंने रिपोर्ट किया वहां पे सिक और इमीडिएटली इंटीमेट कर दिया अपना ब्रांच ऑफिसर को. ब्रांच ऑफिसर अपना डीआरएम को बता देगा कि ये हमारा ऑफिसर जो है बीमार पड़ गया, वो वहां पे प्राइवेट डॉक्टर किया क्योंकि वहां पे रेलवे नहीं था. व्हाइल कमिंग यू जस्ट ऑन अ प्लेन वर्डेड पेपर, ड्यूटी सर्टिफिकेट बदले में गेजेटेड को हम ऑन ए प्लेन वर्डेड पेपर फिटनेस दे देते एंड उस पीरियड को तुम अप्लाई कर दो, कम्यूट कर देगा अपना ब्रांच ऑफिसर. सो ड्यूटी सर्टिफिकेट के लिए इतना ही हम बोलूंगा. इट इज ओनली फॉर नॉन गेजेटेड. गेजेटेड के लिए पीएमसी प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट नॉट अलाउड. अगर एक्सेप्शनली कुछ केस में हो गया तो ऑन ए प्लेन वर्डेड पेपर हम दे देते. नेक्स्ट कम्स जो लोग वर्कशॉप में काम करते हैं अंडर WCA एक्ट, उसके लिए IOD सर्टिफिकेट. अगर इफ इज इंजर्ड ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट, अगर इंजर्ड ऑन ड्यूटी हो गया इन दैट केस सिक मेमो लेके आते हैं. ऑल सिक पीपल कम्स विद अ मेमो, बट ऑफिसर्स डू नॉट कम विद अ मेमो. हमारे लिए जस्ट हम डॉक्टर के पास अप्रोच करते हैं, लिख के देते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वांट टू रिपोर्ट सिक, तो डॉक्टर उसको देख के रिकॉर्ड में रख के उसको ऊपर हम सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं. लेकिन बाकी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय के लिए मेमो आते हैं. Now IOD is, though it is for the workshop people, but again IOD is not given to any gazetted officers. It is not applicable. भले वो फ्लोर मैनेजर वर्क्स मैनेजर हो,
या CWM हो, कोई भी हो, इंचार्ज हो, सीनियर DME, कोई भी वर्कशॉप का हो, या सीनियर DW हो, AW हो, TRS, TRD, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। गेजेटेड के लिए भले वर्कशॉप में पोस्टेड है, IOD इज नॉट एप्लीकेबल, ओनली टू द नॉन गेजेटेड स्टाफ वर्किंग इन फैक्ट्री अंडर रेलवेज। उनके लिए इंजरी अगर हुआ तो दो चीज होता है, एक तो मेमो लेके आता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट देने के बाद मेमो लेके आता है विद इन 48 आवर्स और उसको सिक पे रखता है। दूसरा क्या होता है कि उसके लिए एक WCA फॉर्म है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट फॉर्म, जो कि सुपरवाइजर एज एन विटनेस साइन करते, टाइम डालते हैं, क्या हुआ लिखते हैं, कैसे हुआ लिखते हैं, फॉर्म भेज देते, डॉक्टर के पास आते, वी सर्टिफाई वेदर द इंजरी इज सीरियस, सिंपल और ग्रीवस। उसके हिसाब से उसको बाद में कंपेंसेशन मिल सकता है, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी इफ समथिंग हैपेंस, फिंगर इंजरी हो गया या कट गया, कुछ भी हुआ, इसी हिसाब से पर्सनल डिपार्टमेंट के थ्रू उसका फाइल आता है हमारे पास, हम उसको मेडिकल बोर्ड स्टैंडिंग बोर्ड है, बैठा के उसका लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हम एस्टिमेट करके लिख के दे देते, इतने परसेंटेज उसको देना है। IOD सर्टिफिकेट में जो नॉन एंगेजेटेड एम्प्लॉय आता है अंडर वर्कशॉप जो काम करते हैं, इंजरी होगा, सर्टिफाइड बाय सुपरवाइजर विद द WCA फॉर्म एंड द मेमो, जब छुट्टी पे रहते हैं, सिक पे रहते हैं, इट इज अ स्पेशल छुट्टी। नॉर्मल जो सिक लीव है HLAP से उसको कम्यूटेशन के लिए जरूरत नहीं है, जितने दिन वो सिक पे रहेगा उतने दिन उसका फुल पे मिलते रहेगा, किसी और चीज से डेबिट नहीं होगा। सो IRD के लिए लोग मारामारी भी करते हैं, कभी कभार चालाकी भी करने का कोशिश करते हैं। सो ये हो गया। और लास्टली जब मेडिकल इनवैलिडेशन होता है, एज आई सेड कि मेडिकल इनवैलिडेशन कोई लोग बहुत क्रॉनिक इलनेस से भुगत रहे, चाहे कैंसर हो, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे ऑर्थोपेडिक केसेस हो, चाहे पैरालिसिस हो गया स्ट्रोक के बाद, ऐसी केसेस जो है हम लोग वेट करते हैं 3 महीने 6 महीने मैक्सिमम 1 ईयर। उसके बाद जैसे हम डिसाइड करते कि इसको आगे कैटेगरी चेंज कर दे कि नहीं, AEMG करके ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल ग्राउंड, और ये किसी चीज का लायक नहीं है, मेडिकल इनवैलिडेट कर देते थ्रू मेडिकल बोर्ड। तो जब ये करते हैं तो मेडिकल इनवैलिडेशन के लिए हम सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। सो ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर जो है, जिसके पास ऑथोरिटी है, जुरिस्डिक्शन जिसके पास, एंड कॉम्पिटेंट मेडिकल ऑफिसर हु इज कॉम्पिटेंट टू इशू लीव। जुरिस्डिक्शन में बता दिया। ओके, लेट मी go on to, okay, these are the descriptions as I said. Now at the times, during the time of say festival in that particular local area, DRM may issue some notification that for special period from this to this nobody should be taken on sick leave. So हम लोग क्या करते हैं, जब वो नोटिफिकेशन आ जाता है हमारे पास, कोई भी अगर आए तो हर के टाइम पे तो उनको सीधा बता देते, भाई तुम्हारा कैटेगरी के लिए, ज्यादातर रनिंग स्टाफ के लिए देते, सेफ्टी कैटेगरी में, कि ये परमिशन अभी नहीं है, अगर इतना ही बीमार हो तो एडमिट हो जाओ। हम उसको इंडोर केसेस के लिए, जेन्युइन केसेस को भर्ती करते, OPD बेसिस पे हम नहीं करते। तो कीप इन माइंड, जो भी वर्कशॉप में ज्यादातर इलेक्ट्रिकल पीपल, मैकेनिकल पीपल जब जाओगे तो, और बाद में तो ऑपरेटिंग वाला है ही, तो तुम्हारे पास भी ऐसी नौबत आ सकता है कि एज बीइंग AE और DWE और AME और DME, तो इस तरह हो सकता है कि इसको छुट्टी देने पड़ेगा। बोले क्यों छुट्टी देने पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, मेमो लेके भले आता है, ये नोटिफिकेशन आ गया तो इसलिए अगर वो OPD बेसिस पे ट्रीटमेंट हो सकता है तो उसको हम सिक पे नहीं रखते, बोलते हैं MOD, मेडिसिन ऑन ड्यूटी करके चिट पीछे लिख के उसको वापस कर देते हैं। अगर ऐसी खासियत है, खास बीमारी है, तो उसको डेफिनेटली एडमिट कर देगा, उसके लिए DRM माना नहीं करता। इतना याद रखने पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारा दो इट इज फॉर अस, लेकिन किसने कितने का कितना मंथ का परमिशन है सिक विद सर्टिफिकेट इशू करने का। अब जूनियर स्केल ऑफिसर, एडिशनल असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, फिर सीनियर स्केल ऑफिसर, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, तो इनके लिए 4 महीने का, 4 महीने हो गया और लंबा सिक पे है, क्या वो उसको डिस्चार्ज कर देगा? नो, उसको फिट नहीं दे सकते, उसको ही कैन बी केप्ट ऑन सिक लिस्ट बट काउंटर साइंड बियॉन्ड 4 मंथ्स बाई अ सीनियर पर्सन। और CMS के पास पावर है 18 मंथ्स की। 18 मंथ्स के ऊपर अगर रेयरली केस जाता है तो इट हैज टू बी काउंटर साइंड बाई द जोनल PCMD और CMD। So 4, 9, 18.
नाउ आई शो यू, दिस इज अ नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय का एक फॉर्मेट है। हमारे लिए क्या होता है, सिक फिट सर्टिफिकेट एक एक तीनों अलग किताब होता है। सिक के लिए अलग किताब होता है, कंटिन्यूअस सिक सर्टिफिकेट के लिए एक किताब होता है, और फिट के लिए अलग होता है। एंड ऑफिसर्स गेजेटेड के लिए इट इज इशूड इन ट्रिप्लीकेट, 3 कॉपी। सिक भी 3 कॉपी, फिट भी 3 कॉपी, सीएससी भी 3 कॉपी। इसीलिए कि एक कॉपी हमारे पास रहता है, एक कॉपी पर्सनल, एक कॉपी फाइनेंस में जाता है, इसीलिए 3 कॉपी इशू होता है। बट फॉर द नॉन गेजेटेड इज अ सिंगल फोल्डर, सिंगल फॉर्म। तो सीरियल नंबर भी जो लिखा हुआ है एक के बाद दूसरा चेंज हो जाता है, बट हमारे लिए तीनों में एक नंबर रहता है, उसके बाद चौथे में चेंज होता है। सो इसमें क्या होता है कि पहले हम राइट साइड वाला जो देखा, ये वाला पहले जो सीख देते, अगर 3 तो इसको और 3 दिन देने पड़ेगा, तो दिन अलग किताब है, कंटिन्यूअस सिक्स सर्टिफिकेट इशू कर देते। उसके बाद जब फिट आता है, ये यहाँ पे फिट सर्टिफिकेट को इशू कर देते, यहाँ से भी टेयर इट ऑफ और इसको फिट दे देते हैं। हमारे पास जो रहता है बुक जो रहता है, इसके पास काउंटर फाइल में बोथ सिक एंड फिट का यहाँ पे डिटेल होता है, क्या बीमारी था, कौन नाम था, एक्सेट्रा डिटेल, कब से कब तक फाइनली था। अब यहाँ पे जो फिट है, ये फिट को हम काट के ट्रांसफर फिट लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर सर्टिफिकेट इफ द पर्सन एम्प्लॉय इज ऑफ अदर रेलवे। तो जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे होता है। इसके अलावा भी ये फिट को काट के डिस्चार्ज फ्रॉम सिक लिस्ट होता है, जब एईएमजी करते हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम सिक लिस्ट होता है जब एक आदमी बीमार होते हुए डेथ हो जाता है, और डिस्चार्ज फ्रॉम सिक लिस्ट ऊपर लिख देता है व्हेन अ पर्सन इज बीइंग मेडिकली इनवैलिडेटेड। तो 3 रीजन तुम्हें बता दिया। तो देयर माइट बी अ क्वेश्चन आस्क्ड, डिस्चार्ज फ्रॉम सिक लिस्ट हम कब करते हैं? तो एक तो इसी फिट को जब हम सिक कर लिया, सिक के बाद बीमार था, आदमी का मृत्यु हो गया, तो इसको फिट करके डिस्चार्ज फ्रॉम सिक लिस्ट ड्यू टू डेथ। एक आदमी बहुत सालों से बीमार है, महीनों से, अल्टीमेटली उसको हमने कैटेगरी चेंज कर दिया, डिकैटेगराइज कर दिया, एईएमजी कर दिया, तो हम सिक पे थे, इसको काट दिया, फिट को काट के यहाँ पे लिख दिया रेड इंक से, डिस्चार्ज फ्रॉम सिक लिस्ट ड्यू टू एईएमजी। सिमिलरली मेडिकली इनवैलिडेट कर दिया टोटली, उसको सुपर एनुएट करवा दिया जाएगा, पेंशन मिल जाएगा अब से, चाहे 55 उम्र हो में हो, 58 में हो या 52 में हो। अगेन यहाँ पे फिट को काट के हम लिख देते हैं डिस्चार्ज फ्रॉम सिक लिस्ट ड्यू टू मेडिकल इनवैलिडेशन। एंड द फोर्थ वन, मान लो वाइल ऑन सिक लीव, अ पर्सन को मैंने बोला 5 दिन तू जा, छुट्टी दिया, बट ऑन द 6th डे यू हैव टू कम फॉर फॉलो अप टू मी। अगर उस 5 दिन के बाद 6वां दिन नहीं है, 7वां दिन नहीं है, चलेगा, 10 दिन बाद वापस आता है, शैल आई वेट? बिकॉज दैट पीरियड इज अनऑथराइज्ड, उसको कोई कवर नहीं है। I can discharge him from sick list due to non-attendance. So non-attendance while on sick leave, I can discharge. So this is the fourth reason. So 4 reason discharge from sick list का क्या हो गया? Number 1, non-attendance while on sick list, उसको बोला गया था लेकिन रीजनेबल टाइम के अंदर वो आया नहीं, I can discharge him from sick list due to non-attendance. Number 2, AEMG. Number 3, death. Number 4, invalidation. Fine. सो इंटरिम सर्टिफिकेट एज आई सजेस्टेड फिट हो गया, ट्रांसफर भी बता दिया। सर्टिफिकेट ऑफ चेंज एयर किस लिए देते हैं? फॉर रिकवरी एंड फॉर रिक्यूपरेशन फ्रॉम इलनेस वाइल ऑन सिक। मैं आपको बाहर जाने की इजाजत दे रहा हूँ तब ओनली, ऐसा नहीं दे रहा हूँ। ऐसा अगर जाना चाहते हो तो फिट लेके जाओ, नो इशू, अपना छुट्टी लेके जाओ। और सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज विच रिक्वायर चेंज ऑफ एयर, अगर जरूरत पड़े तो सेम थिंग। अब चेंज ऑफ एयर के लिए जैसे उधर बताया था कि एडीएमओ कैन इशू अप टू 4 months एंड डीएमओ अप टू 9 months एंड देन सीएमएस अप टू 14 months एंड बियॉन्ड 18 months, सॉरी, बियॉन्ड 18 months CMD. This is for sick fit certificate, sick certificate. But in case of change of air, this has been restricted for the junior scale. But if the patient is under him, he can take a counter signature for up to 2 months from DMO. From CMS up to 9 months, beyond 9 months it goes to CMD. So nil to 9 and beyond 9 CMD. और वहां पे था 4 महीने, 9 महीने, 18 महीने, 18 महीने के बाद PCMD। ड्यूटी सर्टिफिकेट बता दिया कि पीएमसी लेके अगर नॉन रेलवे कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी लेके आए तो भी चलेगा, बट बियॉन्ड 3 days नॉन गेजेटेड। हमारे लिए इट्स वन ए प्लेन वर्डेड पेपर। इंजर्ड ऑन ड्यूटी के लिए एज आई सेड वी विल गिव द ट्रीटमेंट इमीडिएट सुपीरियर से मेमो लेके आता है, एक तो सिक मेमो
दूसरा एक फॉर्म लेके आता है रिपोर्ट करके, एंड इमीडिएटली इट हैज टू बी रिपोर्टेड। मेडिकल इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट बता दिया। नाउ दिस वाज व्हाट आई वाज स्ट्रेसिंग अपॉन। डिस्चार्ज फ्रॉम सिक लीव ड्यू टू व्हाट? नंबर 1, नॉन अटेंडेंस व्हाइल ऑन सिक लीव, decategorization or alternate employment medical ground, third medical invalidation, and fourth if the person dies while on sick list, तब जाके डिस्चार्ज फ्रॉम सिक लिस्ट में वो फिट काट के हम डिस्चार्ज कर देते हैं। सिमिलर थिंग इट हैपेंस इन केस ऑफ, हमारे लिए इनवैलिडेशन ओनली होता है, हमारे लिए डिकैटेगराइजेशन नहीं होता है, और मोस्टली ऑफिसर्स का नॉन अटेंडेंस नहीं होता है, बुला के ही लाते हैं, भाई तुम ले जाओ, गड़बड़ हो गया। इट हैपेंस समटाइम्स, इट मिसेस, एंड आज जो बता रहा हूँ एग्जाम के लिए याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न अबाउट, 15-16 पेपर है, बट ये जो है प्रैक्टिकल चीज है और इसका इम्प्लीकेटेड है। तो कभी भी सिक होके, अब मान लो कोई एक स्टेशन पे सिक कर लिया, अब तुम्हारा सीनियर ऑफिसर बोल रहा है अरे भाई तुम सिक पे हो, मेरे पास एक फाइल है, आ जाओ आके इसको साइन करो, प्रेशर माइट कम, बट वाइल ऑन सिक लीव यू आर सिक। अगर तुम कदरदान हो करना होना चाहते हो तो कर दो काम, लेकिन यू आर स्टिल अंडर सिक लिस्ट। ऐसा मैंने केसेस देखा था, जूनियर स्केल अकाउंट्स ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर, वो जाके ज्वाइन कर लिया और नौकरी कर रहे हैं। अचानक एक दिन हमारे साथ बात हो रहा था किसी और सीनियर डॉक्टर सीएमएस इंचार्ज की एडमिन के साथ कि मैं ये कैसे ऑफिसर सुना है हमारा फाइल में साइन कर रहा है, हाउ शी इज ऑन सिक लीव। तो बोला हाँ अभी तक तो फिट नहीं लिया, तो ज्वाइन कैसे कर लिया? उसको बुलाया, समझाया, फिर बैक डेट से उसको फिट देना पड़ा। तो ऐसा होता है, तो ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। सो अगर सीख है तो फिट लेके ज्वाइन करो, ये 4 रीजन है। नेक्स्ट, आरपीएफ स्टाफ के लिए मैंने क्यों रखा अलग से? बिकॉज आरपीएफ स्टाफ नॉट ओनली एम्प्लॉय, स्टाफ मीन्स नॉन गेजेटेड, मैं ऑफिसर की नहीं बात कर रहा, ऑफिसर का सेम रूल जो मैंने बताया। ये मेमो लेके आएगा, नॉट ओनली दैट एक डिक्लेरेशन लेके आएगा। मेमो कहाँ से लेके आएगा? और अपना बैरक से, कंट्रोल ऑफिसर से, अगर नहीं हुआ बाहर से कोई स्टाफ आया है आरपीएफ वाले, वो बैरक पे अगर मिल गया तो ठीक है, नियरेस्ट पोस्ट, नहीं तो स्टेशन से एसएम या एएसएम से ले आएगा। और इमरजेंसी हो अगले दिन, नहीं तो ओपीडी में देखा गया इमरजेंसी हो, भर्ती कर लेंगे। अब वो क्या लेके आता है? एक तो वो मेमो लेके आएगा, दूसरा एक डिक्लेरेशन उसको देने पड़ेगा, ट्रिप्लिकेट और प्रिंटेड डिक्लेरेशन होता है। तो आरपीएफ बैरक से जैसे लेके आएगा वो लेके आएगा, अगर आरपीएफ बैरक से नहीं लेके आए तो इसको हम लिखवा लेते हैं ट्रिप्लिकेट। इनके लिए ये ट्रिप्लिकेट में एक डिक्लेरेशन जरूरी है, बाकी सब नॉन गेजेटेड के लिए जरूरी नहीं है। क्या लिखते हैं? अगर मान लो उसका कोई ट्रांसफर ऑर्डर आया, या ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी का ऑर्डर आया, या उसका टेम्पोररी कोई ट्रांसफर ऑर्डर आया, या डीआर एक्शन, उसका डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, उसको पता चल गया, जाके सीक मार देते हैं ताकि सो दैट वो पीरियड के लिए हम बच जाए। तो हम तो ऐसी नहीं है, वो डिक्लेयर करेगा। सैंक्शन लीव में है, उस समय वो सिक नहीं कर सकते। दूसरा, उसका छुट्टी बचाने के लिए सिक कर लिया, उधर से लीव ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसी डिक्लेरेशन उन्हीं से लेने पड़ेगा, एंड इट द रूल हैज बीन मेड फॉर द आरपीएफ स्टाफ स्ट्रिक्टली। सो डिक्लेरेशन इन ट्रिप्लिकेट एंड अ मेमो, ये लेके वो सिक रिपोर्ट करते हैं आरपीएफ स्टाफ, इतना ही आपको याद रखना है। गेजेटेड ऑफिसर जब होता है असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, हम दे सकते हैं जूनियर स्किल स्पेशलिस्ट के पास आप जा रहे हो वो करके, बट एडिशनल सीएमएस, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंचार्ज, और एडमिन में हो या चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो डिवीजन में, हैज टू काउंटर साइन दैट। बिना काउंटर साइन की तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं इशू होता है ऑफ द इंचार्ज ऑफ द हॉस्पिटल, बिकॉज यू आर अ गेजेटेड ऑफिसर। हमारा ट्रिप्लिकेट में इशू होता है सिक, इंटरिम एज वेल एज फिट। इंटीमेशन इमीडिएटली ब्रांच ऑफिसर और डीआरएम को चले जाता है, बट इफ इट इज मोर देन 10 days, बियॉन्ड 10 days, ये इंटीमेशन हम सीएमएस को, सीएमडी को देने पड़ता है, so that GM can understand and get the acknowledgement that yes, one of my officer at such division is sick due to this reason for more than 10 days. So continuation also in triplicate, fit also in triplicate. हमारे लिए नो प्रोविजन ऑफ प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट पीएमसी ऑन अ जनरली वर्डेड फिट पेपर, हम यूजुअली आपको फिट दे देते हैं अगर आप पीएमसी रेयर इंस्टेंस में, एज आई गिवन एग्जांपल, लेके आते हो तो। ओके फाइन, 2 मिनट के बाद आई विल स्टार्ट फॉर द रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट में कुछ इंटरेस्टिंग है, आई विल टॉक अबाउट दैट, ओनली 2 minutes।
मैं भूल गया कल क्या क्या और पेपर है। सर स्टोर्स का अकाउंट्स एंड होगा, सिविल इंजीनियरिंग। अकाउंट्स का है और सिविल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का। चित्रांकन करने पड़ेगा, डायग्राम डालने पड़ेगा। पढ़ लिया सब डायग्राम इंजीनियरिंग की? पढ़ा तो है सर थोड़ा सा। थोड़ा नहीं, पूरा करो। सर बहुत ज्यादा सिलेबस है सर, अकाउंट्स सर में तक मेडिकल लगा में भी है। डायग्राम आएगा क्या सर? नहीं नहीं भाई, इट इज नॉट बायोलॉजी। मेडिकल में क्यों डायग्राम आएगा? इंजीनियरिंग का डायग्राम आता है। कर्व पूछेगा, बालास्ट पूछेगा, तो टिपिकल क्वेश्चन है। एंगल पूछेगा, कर्व में लेना है तो कितना डिग्री होता है, तुम लोग तो फिजिक्स में पढ़ा, वही अप्लाई करने पड़ेगा। सिग्नलिंग में भी तो डायग्राम था, एसएनटी में भी तो डायग्राम था ना। सर नहीं नहीं सर, बनाया उसमें था डायग्राम बाद नहीं में, पूछा था सर। डायग्राम पूछा नहीं तो अच्छा है। थ्योरेटिकल था सर। हाँ, पिछले बार मैं कई साल पहले जब मैंने अर्स्ट वाइल आई वाज पीएचएम, उस समय तो क्वेश्चन था, दिखने पड़ता था। और तुम्हारा जैसे ही जो है थोड़ा पढ़ा करके जाते थे मोबाइल में लेके, और मोबाइल को पिछवाड़े में रख के उसको देख के करता था, और मेरे हाथ में पकड़ा जाता था, और सारे मोबाइल पहले ले लेता था। अभी सारे मोबाइल लेके बैठते हो, मोबाइल छोड़ के आते हो? सर कोशिश छोड़ तो के रहती जाते है हैं। लेके छोड़ के बैठे जाते सर। सर, छोड़ के जाते सर। नहीं छोड़ देना था, इन्विजिलेटर बोलते नहीं कि टेबल पे रख के ऊपर जाओ। सर पूरी कोशिश करते हैं लेके बैठे सर, लेकिन कभी कभी सर मतलब छोड़ना पड़ कोशिश जाता उल्टी है। की तरफ से, इन्विजिलेटर पूरी कोशिश कर से तुमसे बचाने के लिए, लेकिन वो बच नहीं पाते तुम लोगों से, कुछ ना कुछ कर ही लेते हो लगता है। गुड। यस सर, सर पास कुछ होना है ऐसा ना नहीं हो सर। सकता कि मोबाइल सुनो अलाउ सुनो, कर दें? ये बात तो सही हुआ, लेकिन मेरे को कंप्लेन आ रहा है, कल मीटिंग लंबा चला हम लोगों का, ये भी सुना है कि तुम लोग क्लास में जब एग्जाम हॉल में बिना मास्क के आते हो, कई लोग हैं। ऐसा क्यों? और जब एग्जाम देते हो तब भी मास्क उतार देते हो, कई नहीं लोग तो। सर अब हमारे रूम में तो सब ये बोल पहन के रहे रखते हैं, हैं। लेकिन ऐसी हो चुके हैं। ऐसा क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। एंड हु डज इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। और मास्क बिना पहन के तुम सब लोग 1.5 घंटा बैठते हो, दिस इज नॉट टेकन ना। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ चले गए फिर? सर मेरे क्लास में तो सर वापस भेज दिया था, अगर मास्क नहीं है सर, सब लगा के बैठे थे। अच्छी बात है। और हाथ हैंड सैनिटाइज करके जाते हो क्या ऊपर गैलरी में बैठने के लिए? यस यस सर। सर। यस सर, यस सर। जब भी रूम से बाहर निकलते हैं सर हॉस्टल के नीचे करते हैं। हॉस्टल के नीचे भी है? पौने में है? पौने अतिथि में, पौने में है क्या हैंड डिस्पेंसर? सर पावने में कुछ नहीं है सर, पावने में एकदम खंडर है सर। क्यों? मशीन था ना? नहीं है सर यहाँ पे, अभी उसमें होता ही नहीं है। शुरू में आए थे तब रखा था मशीन, उसमें वो लिक्विड तो डालते ही नहीं है सर, सैनिटाइजर। सर दिस इज अतिथि में सही है सर, यहाँ कर लिया करो आके। अतिथि में है? सर यहाँ पे सर पूरा अच्छे से मेंटेन करा है उन्होंने सैनिटाइजर वाला मशीन सर। पहुने में नहीं है ना। एक्चुअली नहीं है सर। प्रॉब्लम जेम आइटम से सब आए हैं, तो चाइनीज वाला वो सब गड़बड़ हो गया। बट आई हैव टू टेल, मेरा सीएचआई भी तो छुट्टी पे है। somebody has to look into these things, no? बट तुम्हारे पास अपना सेल्फ सैनिटाइजर कुछ दिया हुआ है अपना रूम में? सर दिया हुआ तो कुछ नहीं है, हम घर से लेके आए थे सर, बस घर वही से है। लेकर आए थे सर। मेस में तो है पूरा। और मेस में कल तो उसका अरेंजमेंट भी थोड़ा सा बदले, देखा मैंने। अभी हाँ दूर में सर, थोड़ा। अब 2 ही लोग सर बैठ सकते हैं एक टेबल पे सर। सर हाँ, एक दो। बात समझ में नहीं आया सर, मेस में खाना खाते वक्त कोरोना का डर रहता है सर, लेकिन पीटी योगा में डर नहीं रहता सर। नहीं, पीटी योगा में नहीं होगा क्योंकि वो ओपन एयर में है, एंड एवरीबडी इज फेसिंग एट द बैक ऑफ ईच अदर। उसमें नहीं होगा। योगा में तो डिस्टेंस मेंटेन करके बैठो तो इट्स नॉट एन इशू। बट मेरा राय लोगों तो मैं तो कुछ भी नहीं कराना चाहता हूँ इस समय। अगर रेस्ट्रिक्शन करना ही है तो पूरी तरह रेस्ट्रिक्शन मेरे हिसाब से करना चाहिए। बट यस, एग्जैक्टली सर, हम भी यही सोचते हैं। नहीं, बाकी जो है कि डीओपीटी ने जब इशू किया तो डीओपीटी का देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत में ये चल रहा है, एंड दिस इज एन ऑफेंस मेनी प्लेसेस में, दे आर वायोलेटिंग। बट अगर वायोलेट करोगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में तो सब अरेस्टिंग का पावर भी है।
तो लेकिन ऐसा है कि जब डीओपीटी ने बोला था कि 15 अक्टूबर से या 31 अक्टूबर के बाद से, या ऐसा कुछ था, मैं डेट भूल गया, कि थोड़ा रिलैक्सेशन कर सकते, ओपन एयर में लोग खेल सकते, नॉट इन अ ग्रुप ऑफ मोर देन 50। अभी तो 100 कर दिया, बट जब खेल रहे हो उस वक्त नहीं, जब खेलने आ रहे हो जा रहे हो उस समय मास्क हैज टू बी देयर, सैनिटाइज करके आना है। तो सिमिलरली योगा पीटी में भी वही रूल्स फॉलो करके चल रहा है। अभी जो नया हमारा नोडल इंचार्ज है, सीओ एफएम, मिस्टर याग्निक, ही फॉलोज द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली। ही वाज डायरेक्टर ईडीमी जमालपुर में पहले, एकदम पर्टिकुलरली वो आज उसके लिए भी हमारा एक अलग से छोटा सा मीटिंग फिर 4:30 बजे, जो जो वायलेट कर रहा है उसके लिए क्या क्या स्टेप लिया जाए। कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो करना ही पड़ेगा। अब इस हद तक आ गया मामला। अच्छा, तुम लोगों का दूसरा है कि ऐलान कर देता हूँ, ये 2 ग्रुप बैठे हो, ये सैटरडे संडे 2 दिन मैंने फिर से कलेक्टर को, मैडम ने बोला था उनको, उससे बात करके रात को एक बार फिर से टेस्ट कराया जाएगा, आरटीपीसीआर सैम्पलिंग। तो जैसे जैसे ग्रुप में किया था, तो वैसे वैसे ग्रुप में 2 दिन में हम खत्म करेंगे। तो जैसे एक एक दिन में एक एक ग्रुप था 65 की, तो मॉर्निंग में एक ग्रुप रहेगा, आफ्टरनून में लंच के बाद एक ग्रुप रहेगा, 65 करके 130, अगले दिन फिर 60 और 55 जो भी बचेगा 241 सबको सैटरडे मॉर्निंग इवनिंग, संडे मॉर्निंग इवनिंग में हम फिर से टेस्ट करवाएंगे। समझ में आया? यस सर, आ गया सर समझ में। हाँ, तो ये शनिवार का दिन होगा। और तुम लोग ये घूमने कब जा रहे हो? और कहाँ स्टैचू ऑफ सर? यूनिटी कब? कल? नहीं सर, कोई पता ही नहीं है सर घूमने का तो कुछ सर बाहर जाना अलाउड क्यों नहीं है सर? दम घुटने लगा है नहर के अंदर, 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया क्या सर बाहर सिटीज में घूमने के लिए। भाई, हम खुद ही नहीं जा रहे यहाँ रहते हुए भी, हम क्या करेंगे? ठीक है, तुम लोग यहाँ यहाँ के मतलब कुछ नहीं होगा ऐसा तो क्यों सोचते हो? तुम लोग को जब यहाँ बुलाए थे, ये 10 हफ्ता ठीक है, इट्स अ ट्राइंग टेस्ट पीरियड, टेस्टिंग टाइम। ट्यूसडे के बाद से तो सर पढ़ाई में ही निकल जाता है टाइम अब सर। तो पढ़ो। प्रायोरिटी भी नहीं दे पा रहे हैं स्पोर्ट्स की सर। अभी तो सभी स्पोर्ट्स को अभी ढीला कर दिया जाएगा, डीजी साहब ने कल बोला, मार्क्स दे देंगे, स्पोर्ट्स अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है तो है। सर जिम खोल रहे हैं। नहीं, जिम तो अभी भी अलाउड नहीं है, जिम अभी भी नहीं है, क्लोज स्पेस नथिंग इज अलाउड, ओपन स्पेस इसलिए अलाउड किया। सर स्पोर्ट्स और सिटी में भी नहीं घूमना हमको, बस सर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का तो सर मतलब हो जाए तो सर एक कम से कम एक तो मेमोरी रहेगी नायर की। अरे तुम लोग आते रहोगे, अभी तो फेज 1 फेज 2 इंडक्शन कितना बाकी है? फेज 1 फेज 2 तो ठीक है, सीटीआई में करोगे, इंडक्शन में तो आओगे कि नहीं आओगे? अगले सितंबर ये करा रहे हैं, मामला तब तक आएंगे सर, लेकिन पता नहीं कल किसने देखा। अरे ऐसा मत सोचो, इतना भावुक होने का कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा उम्र ही अभी 23, 24, 25 है, अभी से ऐसे सोचोगे तो हमारा एज में जाके क्या करोगे? तो ये बहाना कुछ नहीं चलेगा, कोरोना कभी होता नहीं है, 100 साल में एक बार पैंडेमिक आया इन अ फॉर्म ऑफ कोरोना, दिस इज ऑल्सो ड्रेडेड फॉर्म। अब चाइना तो वैक्सीन बना लिया, अभी दूसरे को तो क्या, अभी दुनिया में सब लोग भुगत रहे। बट एनीवे, तो रेस्ट्रिक्शन, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन जिसके पास होगा, पेशेंस होगा, ही विल बी सेफ, इतना कह रहा हूँ। अभी दिल्ली का हालत देखो, दिल्ली में कैसे रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इवन अहमदाबाद में केसेस रोज मोर देन 100। और आज ही मैंने बात किया था म्यूनसिपलिटी में तो डॉक्टर की, तो बात ऐसी कैजुअली तो कह रहे बड़ौदा में तो स्टैग्नेंट है, केसेस नहीं बढ़ रहे, लेकिन जो केस ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, होम आइसोलेशन में था, दे आर गेटिंग हॉस्पिटलाइज। अब ये समझ लो, जो होम आइसोलेशन में माइल्ड केसेस था उसका कॉम्प्लिकेशन आने लग गया। सो नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग। तो थोड़ा तो इस साल 2020 2020 एंड अप टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 हैज टू बी, एवरीबॉडी हैज टू बी केयरफुल। चलो, अभी बात करें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे चले। रीइंबर्समेंट हम कब करते? पहली बात है, रीइंबर्समेंट का मतलब ये है कि हमने खर्चा कर लिया और उसके बाद हम सरकार से पूछ रहे हैं कि हमें इतना पैसा खर्चा हुआ, हमें दिलवाओ। नियम ये है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि सीजीएचएस रेट फिक्स बांधा हुआ है। सीजीएचएस 2014 के बाद एवरी सिटी, भोपाल सीजीएचएस, मुंबई सीजीएचएस, अहमदाबाद सीजीएचएस, एवरी स्टेट मेन सिटीज का होता है। अब उसी का जो रेट है, उसी स्टेट में स्थित जो भी यूनिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस पर लागू होता है।
लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि जो रेट्स लेट डाउन है 2014 के अनुसार, एक तो सीजीएचएस रेट कम है मार्केट से, और आज के दिन में 2020 में मार्केट के रेट के हिसाब से इवन इन द सिटी ऑफ बड़ौदा सीजीएचएस रेट इज वेरी लो। बट गवर्नमेंट का यही नियम है कि जो भी खर्चा होगा, जो भी होगा, हम सीजीएचएस रेट पे देंगे। लेकिन इसमें कुछ डाइवर्जन्स है। कैसे? अगर हमने किसी एम्प्लॉय को या ऑफिसर को रेफर किया ऑन रीजनेबल ग्राउंड, और रेफर इस तभी करता है जब हमारे पास मान लो उसी दिन उसी समय वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है नहीं, या प्रबंध नहीं है, या कहीं पे मैनेज नहीं हो पा रहा है। नॉर्मली क्या करते हैं, इट इज इंस्ट्रक्शंस कि मोस्ट ऑफ द डिवीजन हॉस्पिटल वेरी वेल इक्विप्ड एटलीस्ट सर्जिकली। लेकिन अगर किसका न्यूरो सर्जरी का जरूरत है, रोड एक्सीडेंट हुआ, एक्यूट एमआई हुआ, उसका पीटीसी करना है, जो भी है। कृष्णा, आई एम इन क्लास नाउ, मैं क्लास में हूँ, बोलो बोलो क्या हुआ? कौन? वंदनेश, व्हाट वाज द हिस्ट्री? अब एक और न्यूज आ गया आप लोगों के लिए। वंदनेश कौन सी ग्रुप में है? 2B या 2A? नो, एनीबडी नोज? अभय चिराग, सब लोग कहाँ चले गए? सर उसका ग्रुप तो पता नहीं, लेकिन अभी जानते चेक हैं करके सर। सर, पता नहीं सर सर कौन 2A सा ग्रुप का है। 2A, हाँ, मिस्टर बेहरा की सीडी है वो, मतलब सीडी बेहरा है। तो उसका क्या हुआ? वो घर गए थे, यहीं थे? एनीबडी नो? और ही हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव टुडे। सर आज पीटी में बताया था कि वो फीवर है उसे। तो पीटी में नहीं आया ना? यस सर। और उसका रूममेट कौन है? उसी बैच का ही है? 2A का ही है, किसी और का है? सर एग्जाम भी ऑनलाइन हो जाएगा फिर क्या? नहीं, उसका लिए तो दे विल बी सिट, हैव टू सिट फॉर द सप्ली। एनीवे, तो ये 5वें केस हो गया। सो जब भी हम इसको, एक्सेप्शन ये है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफर करवाते तो इन दैट केस फुल रिइंबर्समेंट मिल जाते। अगर प्राइवेट, हमारा साथ ऑल मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स इन द डिविजन्स जितना है ऑल ओवर इंडियन रेलवे टाई अप है। अगर टाई अप हॉस्पिटल में भेजते हैं तो ऑफ कोर्स वहां पे भी कोई कैशलेस हो जाता है। रेयर केसेस में अगर हम रेफर करते टू नॉन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, देयर you have to spend your money, but reimbursement will be under CGHS rate. But normally reimbursement लोग कब करते हैं? इमरजेंसी में। एंड व्हाट इज इमरजेंसी? इट इज डिफाइंड। मैं अभी आप बता देता हूँ व्हाट इज इमरजेंसी। अमुक अमुक इमरजेंसी में अमुक अमुक एक्सीडेंट केसेस और हार्ट अटैक केसेस और स्ट्रोक केसेस, हेड इंजरी केसेस को हम इमरजेंसी बोलते हैं, क्योंकि वो गोल्डन पीरियड में नहीं ट्रीटमेंट दिया जाता तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। इसमें अगर रेलवे हॉस्पिटल दूर है, उसमें आने में, रेफर कराने में टाइम लगेगा। इफ स्ट्रेट अवे somebody goes to some nearest मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां पे उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होगा उस प्रॉब्लम की, देन दे हैव टू रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स, और उसका बाद में रीइंबर्समेंट जब क्लेम करेंगे, प्रूविंग दैट इट इज एन इमरजेंसी, वी कैन गेट देम रीइंबर्स्ड, बट फुल अमाउंट नहीं, सीजीएचएस अमाउंट रीइंबर्स होता है। सो एक्सेप्ट केसेस नॉर्मली कोई आज के दिन में किसी का
रेलवे सेटअप में अगर रिपोर्ट करोगे तो वी ट्राई आवर बेस्ट सो दैट कैशलेस ट्रीटमेंट बन जाए, या तो हमारा टाई अप में बन जाए जहाँ पे भी पैसा देने का जरूरत नहीं, या हमारा इन हाउस बन जाए, कोई सर्जिकल केस है बाहर से पैनल डॉक्टर बुला के सब कुछ हो जाता है। बट इन एक्सेप्शनल केसेस एज आई सेड इन इमरजेंसी, अगर आपने चले गए एंड इफ इट आउटसाइड और फार ऑफ रेलवे से दूर है और रेलवे में आने के मुश्किल है, नियरेस्ट किसी में चले गए, देन इट्स फाइन। सो इमरजेंसी इज अ कंडीशन resulting from any cause arising suddenly. Number one, early convenience, not treated at the early convenience, it may be detrimental to the health and may jeopardize the life of the patient. ऐसी स्थिति को डिफाइन करते हैं इमरजेंसी, लाइक रोड एक्सीडेंट, हेड इंजरी, एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम और स्ट्रोक एटसेट्रा। तो ये हमें डिसाइड करना है इमरजेंसी क्या है और इमरजेंसी था कि नहीं, और उसके बाद यू हैव टू क्लेम योर रीइंबर्समेंट। नो, रीइंबर्समेंट क्लेम कितने दिन करने पड़ते हैं? 6 months। 6 months के बाद अगर होगा, नॉर्मली इट इज नॉट बीइंग एंटरटेन, बट यस दिस पीरियड कैन बी कंडोन्ड only by the ADRM of the division and the finance, associate finance. So the applicant has to apply and we'll send the case through them. नंबर क्या है? 141 पाउंड है। ठीक ठीक, सीडी से बात कर लो, बोल दो मेरे से बात होगी। सो एक होता है रेफर्ड केसेस में रीइंबर्समेंट, दूसरा होता है नॉन रेफर्ड केसेस। नॉन रेफर्ड केसेस में इमरजेंसी में होता है, और रेफर्ड केसेस में अगर हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया तो पूरा, अगर रिकॉग्नाइज प्राइवेट हॉस्पिटल में किया तो खर्चा नहीं है। नॉन रिकॉग्नाइज प्राइवेट हॉस्पिटल के जानते हुए हमने रेफर किया तो उसका भी रीइंबर्समेंट पूरा मिल जाता है। दो चीज होता है, एक तो आप क्लेम करते हो, दूसरा कि उसी हॉस्पिटल की कभी के बाद एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए पैकेज बता देते और बता देते 5 लाख खर्चा होगा, 2 लाख एडवांस चाहिए, तो वो भी डिसबर्स करने के लिए आई में आज डीआरएम के पावर कितना है, सीएमएस के पावर कितना है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डिवीजन लेवल, सीएमएस के पास कुछ पावर होता है, फिर डीआरएम के पास कुछ पावर होता है, फिर उसके बाद जाते हैं पीसीएमडी हेडक्वार्टर में, फिर एजीएम, फिर जीएम के पास फुल पावर होता है। ये 5 लेवल पे होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट। सो रीइंबर्समेंट क्लेम जब करते हैं इन एन इमरजेंसी बीइंग नॉन रेफर्ड, तो दो चीज होता है, इमरजेंसी, दूसरा रेफरल हुआ नहीं है। और अगर प्राइवेट में जाते हैं तो उसके हिसाब से होगा, अगर गवर्नमेंट में गया तो फुल रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। सो ये है कि 1 लाख तक पावर है सीएमएस का, और एमडी बिकॉज इट इज अ बिगर हॉस्पिटल, सिटीज में रहता है इसलिए उनके पास 2 लाख की पावर है।
बट डीआरएम के पास पावर है, अगर प्राइवेट नॉन रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में नॉन रेफरल इमरजेंसी में गया, प्राइवेट नॉन रिकॉग्नाइज जिसके पास हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है रेलवे के साथ, उसके लिए 2 लाख, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में गया, उसके लिए डीआरएम रीइंबर्समेंट क्लेम जब करते हैं अप टू 5 लाख उनका पावर है, और अदरवाइज 2 लाख पावर है नॉन रेफर नॉन रिकॉग्नाइज प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए डीआरएम के पास। सिमिलरली देयर आर सर्टेन पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, पेट स्कैन एटसेट्रा, जो पावर दिया हुआ है सीएमएस एमडी को 15,000 रुपीज पर केस विदाउट एनी एनुअल सीलिंग लिमिट, अप टू 15,000 रुपीज फॉर ऑल पैथोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। और जैसे वेसाइड स्टेशन में हेल्थ यूनिट है, वहां पे अगर सिंगल डॉक्टर है उनके लिए 30,000 का इंप्रेस दिया हुआ है, मोर देन 2 डॉक्टर्स है 30 into 2 60,000 एंड अबव। पर जैसे इंडिविजुअल केसेस में इन्वेस्टिगेशन उनके पास पावर 1500 का है, 15,000 पावर है इंडिविजुअल केसेस का फॉर इन्वेस्टिगेशन, हो रेडियोलॉजिकल सीटी स्कैन एमआरआई इंक्लूसिव, उनके लिए पावर है 15,000 सीएमएस की एमडी की। बट फॉर अ सिंगल हेल्थ यूनिट डॉक्टर 30,000 इंप्रेस में चलाना है, डबल 2 एंड अबव है तो 60,000। बस इतना ही मैं बताऊंगा एग्जाम रिलेटेड। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है ना, ये क्या होता है कि जब भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी जगह पे गया, वहां का जो प्रिस्क्रिप्शंस, बिल्स और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ओरिजिनल विद द बिल्स ओरिजिनल काउंटर साइन बाय दैट पर्टिकुलर ट्रीटिंग डॉक्टर लेके रेलवे में फॉर्म्स मिलते हैं, फॉर्म ए फॉर्म बी एटसेट्रा, उसको भर के आपको मेडिकल डिपार्टमेंट सीएमएस ऑफिस में जमा कर देगा। एंड दे विल स्क्रूटिनाइज, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है बोलेगा ये नहीं है इसको ले आओ, बट दिस मिनिमम थिंग हैज टू बी डन। ना कुछ एडमिसिबल चीज है, कुछ नॉन एडमिसिबल जो चीज है उसको स्क्रूटिनाइज करते हैं कि उसको ब्रेकअप कर लेते, दीज आर नॉन एडमिसिबल। नॉन एडमिसिबल विटामिन टॉनिक्स, सन्ड्रीज, स्पेशल डाइट एटसेट्रा, वो हम अकाउंट में नहीं लेते, भले बिल लेके आते हो उसको काट देते, और अल्टीमेटली बिल जो बनता है अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो फुल, अदरवाइज सीजीएचएस रेट पे देते हैं। जहां जहां सीजीएचएस उस चीज को सीजीएचएस लिस्ट में नहीं है, तो उसको क्या होता है, नियरेस्ट वही जो सिटी है या तो जिस हॉस्पिटल के साथ हमारा टाई अप है, उसी, अभी बड़ौदा में क्लेम कर रहा हूं तो बड़ौदा सिटी में हमारे साथ जिसका टाई अप है, अगर वो सीजीएचएस लिस्ट में नहीं है, उसके साथ टाई अप के साथ में हमारा जो रेट फिक्स है वो रेट हम परमिट करेंगे उसी में। तो इसी हिसाब से टोटल बना के आपको देता है। बट सपोज 1 लाख क्लेम किया, इट माइट बी 70,000, इट माइट बी 55,000, इट माइट बी 75,000, फुल पूरा अमाउंट मिलता नहीं है सीजीएचएस के हिसाब से। तो वो मैं अभी एक टिप्स है वो बता दूंगा कि अगर मेडिक्लेम कार्ड है और रेलवे दोनों से आप कर सकते हो कि नहीं। पहले होता था कि किसी एक पे जाओ, रेलवे का लेना है तो रेलवे से क्लेम करो, अगर मेडिक्लेम करना है तो क्लेम करो, रेलवे में नहीं आ सकते। सो स्क्रूटिनी हो जाता है, फिर हम एस्टेब्लिश करते हैं कि इमरजेंसी में गया था, वेदर इट इज इमरजेंसी और नॉट। इमरजेंसी एस्टेब्लिश हो गया तो एलिजिबल अमाउंट पेमेंट जो मिलेगा वो मिल जाएगा। और प्रोसेसिंग होता है सीएमएस के लेवल पे, फिर एमडी का लेवल पे अगर जोनल हॉस्पिटल में हो, फिर एसोसिएट फाइनेंस पास होता है। अगर हेडक्वार्टर जाना है, मान लो हमने माना कर दिया, आपने फिर क्लेम रिक्लेम किया, तो दिस केस में भी सेंड टू हेडक्वार्टर, फिर हेडक्वार्टर में पीएफए करते हैं, फिर जीएम के परमिशन से आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस 99.99 जीएम लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाता है। वेरी रेयर केसेस अंडर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ जीएम है तो वो रेलवे बोर्ड हम भेज देते हैं, मतलब हेडक्वार्टर भेज देते हैं। So full admissible amount if treated in a government hospital. For treatment in recognized private hospital, conditions which is recognized, वो तो अप्रूव रेट में मिलता है, उसके लिए रिइंबर्समेंट करने की जरूरत नहीं है। जो लिस्ट में नहीं है उनका, उसके लिए अगर क्लेम करोगे दे हैव चार्ज एंड यू आर क्लेमिंग, तो सीजीएचएस रेट पे होगा, और सीजीएचएस लिस्ट में अगर नहीं है तो नियरेस्ट सिटी रेट पे होगा। कौन सी चीज? जो चीज रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में गए हो लेकिन वो ट्रीटमेंट जो है हमारा पैनल में नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, और इन एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में गया है, तब भी सीजीएचएस रेट पे ही मिलेगा। और सीजीएचएस लिस्ट में अगर जो चीज नहीं रहेगा उसको नियर सिटी रेट का हिसाब से हम पकड़ेंगे। सो इट कैन बी रिजेक्टेड, अगर नहीं है तो अपफ्रंट हम बता देते हैं एम्प्लॉय को एट द लेवल ऑफ स्क्रूटिनी ओनली। अगर अपील करते तो हेडक्वार्टर जाते। एक चीज ये बता देते कि फॉर इनफर्टिलिटी कपल्स अगर होता है तो गायनेकोलॉजिस्ट और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि यस IVF is required, and in that case also railway has started reimbursing or paying the amount to the couple, जिसमें रेलवे एम्प्लॉय को
65,000 per cycle standard CGHS rate है, but because this is not an emergency, prior approval of only headquarter PCMD, only headquarter finance is required. When that finance congress come down to the division, associate finance directly pay करते हैं, bill pass करते हैं in the name of the hospital or the government recognized center. आपको नहीं देगा. तो जब तक ये नहीं होगा, if somebody approach, then later on never try to claim. They should not claim because it will not be entertained, since this is not an emergency. 3 साइकिल के लिए मिलते हैं 65,000 each. Now, लास्ट 2-3 स्लाइड एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूंगा. इंश्योरेंस कंपनी से अगर क्लेम करे एज वेल एज रेलवे से क्लेम करे, 2015 के बाद काफी डेलिबरेशन के बाद ये तैयार हुआ, रेलवे एम्प्लॉइज एंड रेलवे रिटायर्ड एम्प्लॉइज अंडर लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम RELHS, अगर मान लो खर्चा कर लिया, टोटल अमाउंट शुड नॉट एक्सटेंड द एक्सपेंडिचर एंड बेनिफिशियरी विल मेक फर्स्ट क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी. अब जो मैंने बताया कि क्लेम करते समय ओरिजिनल बिल सबमिट करना है, तो जब इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम करोगे ओरिजिनल बिल वो ले लेगा, लेकिन आपको उनको बोलने पड़ेगा कि मुझे रेलवे से क्लेम करना है. सो दे विल गिव यू बैक द सर्टिफाइड जेरॉक्स कॉपी ऑफ द बिल्स, द सर्टिफाइड डिस्चार्ज कॉपी, उसका जेरॉक्स कॉपी एंड द सर्टिफिकेट ऑफ अमाउंट दे हैव रीइंबर्स्ड. 1 लाख खर्चा हुआ, उसने 40,000 दिया, उसका भी आपको दे देगा. उसको लेके अपना रेलवे फॉर्म भर के यू कैन क्लेम सबमिट कर सकते हो टू CMS ऑफिस और MD ऑफिस एंड रेलवे विल स्क्रूटिनाइज द एडमिसिबल अमाउंट. अब एग्जांपल के तौर पे मैं इसको नहीं दिखाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा. सपोज इलस्ट्रेशन नंबर 1, एग्जांपल 1, टोटल आपके पास मेडिक्लेम क्लेम कार्ड है, अब रेलवे बेनिफिशियरी भी हो, आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 लाख, खर्चा आपका 1 लाख देने पड़ा. ना आपने मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम किया, दे हैव पेड यू 40,000 एज पर देयर. तो जब आपने रेलवे में आया कि मैंने 1 लाख खर्चा हुआ, 40,000 मेरे को मिला, रेलवे कैलकुलेट करेगा कि CGHS रेट पे 1 लाख का इक्विवेलेंट कितना होता है. फॉर एग्जांपल 70,000 हुआ, 1 लाख के सामने CGHS रेट वेट सब लगा के 70,000 हुआ. इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना दिया? 40,000. 70,000 आपको मैक्सिमम परमिसेबल है. तो रिमेनिंग अमाउंट जो है 1 लाख A माइनस B, 1 लाख खर्चा जो हुआ और 40,000 इंश्योरेंस से क्लेम किया, अगर CGHS रेट इसका डिफरेंस है 60,000, बट CGHS रेट का टोटल बिल बनता है 70,000, तो आपको वो 60,000 मिल जाएगा तुरंत. अगर ये 60,000 जाके 80,000 होता है तो 10,000 नहीं मिलेगा, आपको 70,000 ही मिलेगा. एग्जाम्पल 2, 1 लाख क्लेम आपने खर्चा किया, इंश्योरेंस कंपनी आपको 20,000 दिया, डिफरेंस कितना है? 80,000, बट आपके 1 लाख के इक्विवेलेंट CGHS रेट कितना खड़ा होता है? 70,000. You will not get 80,000, you will get 70,000 only. So this is how it is calculated. So it is beneficial to have a mediclaim card also, as I suggested earlier also. करके रख दो. But you have to choose prudently a company जिसमें कोई capping नहीं है. Many government insurance company has some unset capping. इसका इतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे. So काफी प्राइवेट अच्छा कंपनीज है आजकल मार्केट में प्लेयर. व्हाट दे डू, दे गिव यू फ्लेक्सिबल एक देते हैं, फैमिली मेंबर कोई भी उसी अमाउंट पे आगे पीछे ले सकते हैं. और दूसरा ये कैरी फॉरवर्ड भी होता है, 1 साल में अगर खर्चा हो गया दूसरा भी कर देते सेकेंड टाइम. तीसरा ये बेनिफिट है कि आपका जो भी ट्रीटमेंट करो उसके लिए कोई कैपिंग नहीं. आपका जितना मान लो 10 लाख का आपने मेडिक्लेम बनाया, जिसका प्रीमियम 10-12 हजार होता है सालाना या 16,000, उतने में ही आपको 10 लाख में से जो भी खर्चा होगा इसके अंदर आपको मेडिक्लेम वाला दे देते हैं पूरा. तो ऐसा चीज बनाना चाहिए, तो इससे आपको बेनिफिट होगा आज नहीं. दूसरा, अंडर 80D इनकम टैक्स रिटर्न में आपको डायरेक्ट टैक्स रिबेट मिलता भी है अप टू 25,000 टिल यू आर 60. सो एक बार जस्ट रिकैपिचुलेशन देख ले. सिक फिट सर्टिफिकेट के लिए ADMO अप टू 4 months, DMO अप टू सिक फिट के लिए अप टू 9 months, CMS अप टू 18 months, बियॉन्ड 18 months CMD के पास जाते हैं. चेंज ऑफ ईयर के लिए ADMO नो पावर नील, DMO 2, CMS 9 और 9 के ऊपर CMD के पास जाते हैं. So gazetted officers are not privated for PMC, so they are plain worded paper में रिजम्पशन ऑफ ड्यूटी कर सकते हैं. हमारे लिए ड्यूटी सर्टिफिकेट नहीं होता है. ऑल केसेस रेफर टू बाय रेलवे हॉस्पिटल टू अदर नॉन रेलवे हॉस्पिटल. नॉन रेलवे हॉस्पिटल में रेफर किया, किसने किया? हमने किया.
तो यू आर एंटाइटल फॉर रिइंबर्समेंट अप टू फुल, इवन फॉर अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल फुल। हमने रेफर किया तो ये जानबूझ के किया। बट अगर इमरजेंसी में नॉन रेफरल में गया, नॉन रेलवे प्राइवेट हॉस्पिटल में, नॉन रेफर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसमें आपको सीजीएचएस रेट लगेगा, या जो लिस्ट में नहीं है उसके लिए सिटी रेट लगेगा। Now, sick certificate issued when you are sick, CSC issued when the sick is continued fit to travel, issued for a employee while giving fit to travel when he comes from other railway. Injured on duty certificate issued when the person is injured under working, non-gazetted, working in workshops under WCA, and duty certificate issued when more than 3 days, non-gazetted, brings up PMC. रीइंबर्समेंट पावर कितना है? सीएमएस का पावर है 1 लाख, एमडी 2 लाख, डीआरएम के पावर 2 लाख, सीएमडी 5 लाख, एजीएम 10 लाख, इसका तो डीआरएम तक याद रखो 2 लाख, इधर 1 लाख। ओके फाइन, ऑल द बेस्ट। 30 नंबर चाहिए 50 में से पास होने के लिए। सो टुमारो के लिए ऑल द बेस्ट एंड इट विल थैंक यू सर। ऑल आर वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो पैटर्न बता दो। पैटर्न वही होगा कि एमसीक्यू होगा 25 नंबर की, उसके बाद 5 नंबर होगा आई थिंक ट्रू और फॉल्स 30, एक 4 नंबर की क्वेश्चन रहेगा 1 2 3 4, एक आंसर दोगे तो हाफ नंबर, 2 आंसर दोगे तो वैसे हिसाब से एक, ऐसी करके हम करेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग्स ऑफ कोर्स। देन ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा 6 नंबर की, और 10 नंबर रहेगा एब्रीविएशन, 5 एब्रीविएशन 2 मार्क्स ईच। उसको पूरा लिखो, आधा लिखेगा तो 1 मार्क्स, पूरा लिखेगा तो 2 मार्क्स, 5 दूगुना 10, ऐसे करके 50 नंबर हो जाएगा। सो ओरिएंटेशन दे दिया मैंने, सो दैट हेड ब्लॉक नहीं हो जाता। बट यस, एमसीक्यू में जस्ट रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड एंड देन टिक। चलो ऑल द बेस्ट। सर आई हैव वन डाउट। हाँ बोलो। सर जो डिपेंडेंट्स की यहाँ डिफिनीशन है सर रेलवे में, फादर मदर को इंक्लूड नहीं किया जा नो नो नो, नॉट एट, अभी तक नहीं है रेलवे में। विडो मदर है सर। अदर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कुछ एजेंसीज हैं है करते हैं, वहाँ पे है, हमारे नहीं है सीजीएचएस में, और हमारे यहाँ पे नहीं है। बाकी रेलवे, बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज में हो सकता है, जो तुमने अपने पहले काम कर चुके हो किसी ने, इस पे ऐसा कोई प्रपोजल है सर फ्यूचर के लिए? मतलब ऐसा नहीं, प्रपोजल कुछ नहीं है, बिकॉज रेलवे तो ऐसे ही बोल रहा है हम तो उधार पे चल रहे हैं। अभी कहाँ से प्रपोजल करेगा कोई लाइबिलिटीज बनाने के लिए? बट यस, जो बेनिफिशियरीज, जो डिपेंडेंट बेनिफिशियरीज के एम्बिट है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। रेलवे में इट इज मच बेटर देन सीजीएचएस, क्योंकि ये फुल प्लेजेड आपको इंडोर फैसिलिटीज, और अगर हॉस्पिटल में मैनेज नहीं होता, टाई अप हॉस्पिटल में रेफर करा के किसी तरह केस मैनेज करा लेते, इवन कार्डियक केसेस, स्टेंटिंग, एवरीथिंग, उसमें इक्विटी ऑफ ट्रीटमेंट है, कोई इश्यूज नहीं है। सीजीएचएस में ये प्रॉब्लम है, सीजीएचएस में बेसिकली क्लिनिक बेस्ड है, पॉलीक्लिनिक बेस्ड है, हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पे अपना।